Jesus compared the faith to the mustard seed. तो यीशु मसीह ने विश्वास को वो राई के दाने के साथ में कंपेयर And he किया said, है। mustard seed of faith. विश्वास एक राई के दाने के समान। You don't have great faith, आपके पास बड़ा विश्वास नहीं है, but you can have a genuine faith. लेकिन आपके पास एक खरा विश्वास हो सकता है। If you cannot ignite that faith through the word, अगर विश्वास के साथ जुड़कर आप उस वो विश्वास को आप अगर बढ़ा नहीं सकते हो, you depend on human who is cursed. तो आप मनुष्य के ऊपर निर्भरित हो जाते जो श्रापित है। Hallelujah. Bible says in Jeremiah 17:5, cursed is the man who believes in man. और यिर्मयाह का 17:5 कहता है, श्रापित हो व्यक्ति जो अपना पूरा भरोसा मनुष्य पे डालता है। The Bible says, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man बाइबल and कहता है, makes his flesh strength, श्रापित whose है heart वो- departs from the Lord. श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Your miracles are not depending on how great is your faith. आपका चमत्कार उस पे नहीं निर्धारित है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। Your miracles are depending on how strong is your faith. लेकिन आपका मिरेकल, आपका चमत्कार उस पर आधारित है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। All you need is a mustard seed faith. आपको क्या चाहिए? एक राय के दाने के समान विश्वास। The Bible says, बाइबल कहता है, if that faith is in you, genuine faith, अगर आपके अंदर वो विश्वास है जो खरा है, hallelujah, it's not about great faith, एक बड़ा विश्वास के बारे it's में not नहीं, about big faith, और बहुत Big faith. ज्यादा विश्वास भी नहीं, bada faith, big faith, बहुत ऊंचा विश्वास। but that faith that you have, there should be a mixture of God's word in it. लेकिन आपके अंदर जो विश्वास है वो वचन के साथ जुड़ा हुआ By है। hearing His word, our faith becomes alive. प्रभु का वचन सुनने से ही हमारा विश्वास और आगे में हम आगे बढ़ते हैं। I don't have a lot of faith. मेरे पास ज्यादा विश्वास नहीं है, बहुत विश्वास नहीं है, I had little faith, मेरे पास थोड़ा विश्वास but that was a genuine faith. है, लेकिन वो एक असली विश्वास है, That's why I got saved. इसलिए मेरा उद्धार हुआ। Everybody, initially when they got saved, they have that faith, genuine faith. हर एक व्यक्ति जब नया नया उद्धार होता है तो सबका विश्वास एक खरा विश्वास I रहता just है। had faith. I believe I attended the service. I got saved. और मैंने जब मेरा विश्वास था तो मैंने सभा में गया, मैं अटेंड किया और वहाँ मेरा उद्धार हो गया। But my soul was ready to receive Jesus. और मेरा प्राण तैयार था यीशु को ग्रहण करने के लिए। Hallelujah. And then I heard the trumpet sound. और फिर मैंने वो तुरी की आवाज सुनी, Hallelujah. And that trumpet sound said, yet you die, you shall live, you will have eternal life. तो वो तुरी की आवाज से कहता है, यदि तू मर भी जाएगी फिर भी तू जीवित रहेगा। Are you there with me? So your faith, above all, it should be like a shield in this end times. तो तुम्हारा विश्वास ये अंतिम समय में वो एक ढाल के समान रहना जरूरी Once है। you get this faith, एक बार तुम इस विश्वास को पाते हो, then your soul will never hear the voice of the world. It only hear the voice of His word. तो तुम्हारा प्राण संसार की बातों की आवाज नहीं सुनेगी, केवल प्रभु की आवाज सुनेगी। Hallelujah. Turn to somebody and say, shield your faith. और विश्वास की ढाल, You know, this shield, say with me, shield. Shield is is used in the olden days for the war. और ये Or to ढाल protect जो है themselves. पुराने समयों में वो युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता था। Hallelujah. So every man who goes to the war, he has to take the shield. तो हर एक व्यक्ति जो युद्ध के लिए जाता था उसका हाथ में ढाल होना जरूरी रहता था। So turn your Bible, Ephesians 6:10. I'll show you something. Be strong in the Lord and in the power of His might. प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। Hallelujah. Are you there with me? Now shield is a defensive weapon. अभी ये जो ढाल है ये एक ऐसा हथियार है अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Hallelujah. You want to protect from every arrows, fiery darts that comes यानी from the enemy. वो जब तब इस्तेमाल करते हैं जब वो जितने भी तीर आते हैं उस तीर से अपने आप को बचाने If के you go लिए। to the war place in the olden days, और पुराने करार में जब आप युद्ध के सब जगह पे जाते without हैं the shield, they never used to go out of the house. तो वो ढाल के बिना वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। And some people, they have a shield as an emblem of war.
और कई लोग युद्ध का प्रतीक के रूप में ले जाते थे। Many group identified with the strength when they carry the shield. I have a strength. बहुत लोग हैं जो जब वो अपना ढाल को लेते हैं तो वो अपने परिचय इस बात से कराते थे कि मैं बलवंत हूँ। When they carry the shield, it is like an emblem. They have that confidence, that faith. I have a shield that will protect my life. और जब वो अपने ढाल को लेकर चलते तो वो अपने आप को एक ऐसे एक एम्बलम या प्रतीक के रूप में उसे ले जाते कि मेरे पास ये ढाल है और उसके कारण मेरे अंदर शक्ति है। But in the Bible times, the shield David used. बाइबल के समय में दाऊद ने ये ढाल को इस्तेमाल किया In था। one occasion, David defeated 22,000 Philistines. और एक समय था जब दाऊद ने 22,000 फिलिस्तियों को हरा दिया। And the Bible says he told everyone to take the shield, 22,000 shield. और बाइबल कहता है कि सबको उसने एक जो है ढाल लेने के लिए कहा, यानी 22,000 ढाल। He ordered that their shield be gathered and he took them back and he put them on the walls of Jerusalem. और फिर उसने वो First he went to the war पहले वो युद्ध के लिए गया and he collected back after the victory और फिर वो लोग को जय प्राप्त होने and he के बाद उसने commanded वापस them लिया वो to ढाल put it को on the wall of और वो Jerusalem. सारे ढाल को उसने क्या किया यरूशलेम के दीवारों पर So लगा that when the दिया। enemy comes to attack, that shield is there to protect the wall. तो फिर जब भी शत्रु जो है अटैक करने के लिए आया तो वो ढाल वहां पर है। Hallelujah. Hallelujah. The Philistines were still spying and looking about the shield. और फिलिस्तीन लोग फिर भी जो है वो उनको देख रहे थे और वो ढाल के ऊपर उनकी नजर Why did चुपके से देख रहे Why थे। did David put that shield on the wall? और दाऊद ने ये सारे So ढालों को when the क्यों enemy पर- comes, क्योंकि जब भी शत्रु आएगा when they see the shield, जब वो उस ढाल को देखेंगे they get scared because there is a war that is protecting Jerusalem. और वो इतना Oh. डर जाते कि एक ऐसा दीवार है जो यरूशलेम को की रक्षा कर रहा And है। also that shield represents the victory in the name of Jesus. और ये जो ढाल है वो एक प्रतीक था जय पाने का। Hallelujah. That means the enemy is still, they're already ready to attack. That's what he said, put it on the wall. यानी शत्रु जो है तैयार है अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, इसलिए उसने कहा पहले से उसके दीवार पर लगा के रख दो। That's what I told you about the Greeks. The Greece, the Spartans, और मैंने इसलिए बताया था यूनानी लोगों का एक तरीका था the only city they are warriors. Hey. और एक ही चीज है कि वो योद्धा थे Hallelujah. Their native is called warrior natives. और उनको जो है वॉरियर When the योद्धा child, कहा गया था। when the child is born, जब उनका बच्चा जन्मता at the है age of 8, they put them into the war field to train, to get और training. 8 साल की उम्र में ही युद्ध करने की रणभूमि में उन्हें डाल देते हैं प्रशिक्षित करने के And लिए। these patrons were well trained. और ये एक ऐसा पैटर्न था, उन्हें बहुत अच्छी तरह And से they ट्रेनिंग दिया जाता become notorious fighters. था और वो लड़ाई करने में बहुत ही नोटोरियस हो And जाते थे they become very fearless from the age of 8 till 20. They have been trained like that. और देखो 8 की उम्र से 20 उम्र तक उन्हें इतना अच्छा से वो उसके इस मामले में प्रशिक्षित किया जाता। They were fearless. उनके अंदर कोई डर ही नहीं, नाम Any की चीज नहीं lion रहती। come, they will tear it off. Any tiger come, they will tear it off. Any wild animal, they will tear it off. अगर कोई शेर आएगा, सिंह आएगा या कोई भी जंगली जानवर आएगा उसे वो फाड़ डाल They देते। were skilled in the और warfare. युद्ध करने में वो माहिर थे। Their very culture is to to become a warriors. और उनका एक कल्चर, उनकी परंपरा ही थी वो, यानी वो All- योद्धा के नाम से At the जाने। age of 8 to 20, all the young men are so strong, notorious fighters. They are warriors. अभी ये लोग जो है उम्र में 8 से 20 के लोग थे जो थे वो बहुत ही कुशल थे और वो युद्ध करने में माहिर बन चुके थे। But the sad part is they are not Christians. लेकिन दुख की बात थी कि वो क्रिश्चियन मसीह नहीं थे। They worship the pagan idols. वो अन्य देवताओं की उपासना They करते थे, worship the Greek gods. यूनानी देवताओं की उपासना करते थे Hallelujah. But morally they were not perfect. और नैतिक रूप से भी वो परफेक्ट नहीं थे, Hallelujah. But they were very notorious. लेकिन वो बहुत ही खुखायत थे। I want to understand. I was reading to understand the whole culture of Spartans. और ये स्पार्टस का जो कल्चर है, परंपरा को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। But when the child at the age of 8, when it comes to 20, लेकिन ये 8 साल का बच्चा जब 20 साल की उम्र में पहुंचता है, hallelujah, and they're ready for war. तैयार है युद्ध करने के लिए, They have to go and fight the battles. जाकर युद्ध को लड़ना ही है उन्हें। And you know what? If anybody doesn't go to the war,
और अगर कोई भी लड़ने के लिए युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, and that community will kill them. समाज के लोग उन्हें खत्म कर Means they counted them as useless. और वो कहते कि ये किसी काम का नहीं, He is बेकार not है, tough. यानी ये टफ नहीं He is है, not strong. जो ये सामर्थ्य नहीं He है, is fearful. ये डरपोक है। Instead of somebody enemy kills him, let us kill him here. शत्रु को उसको मार डालने के लिए बजाय तो हम ही उसको मार डालेंगे। Hallelujah. They were trained so much at the age of 13. देखो 13 साल की उम्र में उनको इतना ट्रेन किया It जाता is a था rigorous training they get. और उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता, प्रशिक्षण दिया जाता वो And at बहुत the ही age ज्यादा of 20, they become a strong soldiers. और एक 20 साल की उम्र पहुंचने तक वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास सैनिक बन जाते And हैं they are ready to go to the battle. और वो युद्ध में जाने के लिए तैयार रहते थे। Amen. Hallelujah. You know, while the training is happening at the age of 8 to 20, 8 साल की Now listen to 8 this. साल की उम्र से 20 साल की उम्र में जब उनका प्रशिक्षण हो रहा they है, did not go home. वो कभी घर नहीं जाते, They ate with them where the training is. यानी जहाँ पर जब प्रशिक्षण की जगह पे ही वो वहाँ बैठ कर And के साथ they खाते थे। lived with the trainers. यानी वो जो ट्रेनिंग करने वाले लोग थे वो ट्रेनर के साथ में रहते थे। They till they reach वहाँ- age 20, they are there for 13 years, 12 सोचो years. 20 साल का उम्र होने तक यानी 13 साल के लिए वहीं पर उनके साथ रहते थे। And in the same units, they fight, they get trained, fight, they get trained. वही यूनिट में वहीं पर वो लड़ाई करते, वहीं पर वो ट्रेनिंग पाते And they knew each other very well. और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते And now they थे। have become a good team. अभी वो एक अच्छा टीम बन गए And हैं। now they are one unit. अभी वो खुद एक अपना एक They are यूनिट बन गए protecting हैं। each other's back. अभी एक दूसरे का पीठ को अभी ढप रहे हैं This is the way they were trained. और इसी रीति से वो ट्रेनिंग हो And चुके also थे। they knew their each one's weaknesses. और ये भी है ताकि वो एक दूसरे की कमजोरी को जानते थे। Brother, who told you about me? भाई तुमको किसने बताया मेरे बारे Because में? they know each other's weakness, they're protecting each other's back. और Oh. तो इसलिए एक दूसरे की कमजोरी को क्योंकि वो जानते थे तो क्या करते थे, एक दूसरे की पीठ को ढकते थे। They knew everything. वो सब जानते थे, Hallelujah. But the history records, लेकिन इतिहास का रिकॉर्ड ऐसा कहता है, they would accomplish everything when they go to the war. यानी जब भी वो युद्ध के लिए जाते वो सब काम को पूरा करके ही आते। They had an amazing feat. उनके पैर बहुत ही अद्भुत थे। Means they are training in the bare feet and their feet have become like a iron. यानी वो अपने जब वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहे थे वो नंगे पैर से वो उसको करते थे। You know, before they go to the war, they take the oath. जानते हो कि युद्ध में जाने से पहले उन्हें शपथ लिया जाता था They take the oath of loyalty. और वो एक शपथ लेते थे कि मैं वफादार रहूंगा। Are you ready? क्या Hallelujah. आप लोग तैयार हैं? So I'm just giving the background to get you into this how you can become a strong Spartan disciples of Christ. तो मैं तुम्हें तो अभी प्रशिक्षित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तो ये पृष्ठभूमि से दिखा रहा था कि आपको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह के लिए कैसे एक योद्धा आप बन सकते हो। You can be a warrior in the kingdom of God. प्रभु के राज्य के लिए एक योद्धा बन You can सकते be a हो। fighter in the kingdom of प्रभु God. के राज्य के लिए लड़ने वाले आप बन सकते When हो। they take the oath, जब वो शपथ लेते हैं hallelujah, they're ready to go and fight. वो तैयार है लड़ने के लिए। I want you to read the scripture 1 Corinthians 16 please. Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय 13 वचन कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष पात्र करो, बलवंत हो। Watch, stand fast in the faith, and be brave and be strong. So बलवान हो God is expecting that you have to become spiritual warrior. यानी प्रभु चाहता है कि तुम एक आत्मिक योद्धा बने। These Spartans are not raised in emotions. They don't have emotions. ये जो स्पार्टन्स है वो कभी भी भावुक, उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी। That's what the Bible says. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ephesians 6:10. इसलिए इफिसियों का 6:10 क्या कहता है कि परमेश्वर में बलवंत और सामर्थी रहो। Hallelujah. And when we are raised spiritually, we should never become emotionally weak.
और जब हम आत्मिक रूप से उठते हैं तो कभी भी हमें भावुक होकर कमजोर नहीं So होना। how can I become emotionally strong, a strong spiritual warrior? तो फिर मैं एक भावुक रूप से स्ट्रॉन्ग वॉरियर योद्धा कैसे बन सकता हूँ? You need to read the Bible verses daily. Number one. रोज आपको बाइबल के वर्सेस पढ़ना है। Number two, you should memorize the key verses in the Bible. यानी बाइबल में जितने भी मुख्य वचन है उसे आपको पाठ करना है। Number three, you need to get trained with sound doctrines. और तीसरी बात है अपने आप को तुम्हें कुछ उपदेशों से प्रशिक्षित करना So है। how can I be strong? तो मैं कैसे बलवंत बनूं? Because the word of God trains my mind क्योंकि प्रभु का वचन मेरे दिमाग को ट्रेन करता है and the word of God strengthens my spirit. और प्रभु का वचन मेरे आत्मा को तगड़ा बनाता You है। should be a trained, thorough disciple. तो आपको एक ऐसा शिष्य बनना है जिसने प्रशिक्षण One- पाया और आप मजबूत हो। 1 Timothy chapter 4 verse 7 Bible says, पहला तिमोथी का 4:7 ऐसा वचन कहता है, but reject profane and old wives' fables and exercise yourself toward godliness. अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियां से अलग रहो और भक्त के लिए अपना साधन करो। So the Bible says, if you want to be a trained, thorough disciple, train the row of godliness. तो अगर बाइबल कहता है कि अगर आपको एक प्रशिक्षण पाया हुआ शिष्य बनना That है means- तो आपको पवित्रता में बनना है, भक्त बनना है। A spiritual warrior will go through a holy discipline. एक आत्मिक जो योद्धा है वो आत्मिक अनुशासन से चलेगा। So how we get this godliness? तो ये भक्तिपन So कैसे what आएगा? is this holy discipline? ये पवित्र शिक्षण क्या है? You will have routine prayers, continue prayers, pray always in the spirit. या आप निरंतर प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करते And रहते you हो। pray in the fasting season. You join the fasting season and you pray. You're disciplining the holy word of तो God. आप उपवास में अपने आप को अनुशासन करके प्रार्थना करते रहे हो, यानी प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को अनुशासित कर रहे हो। If you want to be a spiritually holy disciple, अगर आप अपने आप को आत्मिक पवित्रता में जोड़ना you चाहते need हो, to have a self-control over your fleshly desires. आपके शारीरिक इच्छाओं के ऊपर आपको नियंत्रित करना So what जरूरी happens when you go through this discipline? है। जब आप ऐसे अनुशासित हो जाते हो, Your discipline today that you adopt, आज जो अनुशासन आप फॉलो करोगे it produces the authority for tomorrow. कल के लिए तुम्हें अधिकार प्राप्त करता है। Hallelujah. Are you there with me? Why many people only they get scared for the demons, they get scared for everything in their life because they don't have the spiritual discipline in their life. हाँ, तो कुछ लोग शैतान से इतना डरते हैं और हमेशा वो दुष्ट आत्मा से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन नहीं है। Hallelujah. Psalms 91:1 says, भजन संहिता 91:1 कहता he who है, dwells in the secret place of the Most High, wow, shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में So टिका ना that पाएगा। means you are under His presence. यानी आप उसके छाए If में you हो। are a disciple, you are under His presence. अगर आप उसके चेले हो और- तो आप उसके छाए में हो। Or if you want to become a spiritual warrior, you are under His shade. अगर आप एक आत्मिक योद्धा बनना चाहते तो आप उसके छाया में हो। You know, your spiritual strength is only formed when you are alone with God. और आपका आत्मिक बल तभी बनता है जब आप प्रभु के साथ में अपने अकेला समय बिताते हो। Hallelujah. When you're spirit, if you want to walk in the spiritual strength and power, अगर वो आत्मिक सामर्थ और उसके बल में आप चलना चाहते you हो, need to be under His presence. आपको उसकी उपस्थिति में अपने आप को बनाए हुए You रखना need है। to abide under the shadow of the Almighty. आपको परम प्रधान के छाये में So बैठना है। how can I abide in the shadow of the Almighty? मैं परम प्रधान के छाये में कैसे स्थान पा सकता Through हूँ? your personal worship unto Him. आपकी निजी आराधना के द्वारा। Number 2, praying in the Spirit always. दूसरी बात है आत्मा में निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा। Listening before you speaking to God. प्रभु से बात करने से पहले आपको उसकी सुननी भी So what है। happens? Your spiritual strength is formed. तो क्या होता है? आपका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। Hallelujah. Your public
power flows through the intimacy you have in private with the Almighty God. तो आपका जो Oh. पब्लिक में जो सामर्थ है वो कब बढ़ता है? जब आप अकेले में जितना उसके साथ समय बिताते हो उसके द्वारा, उसके बाद ही वो होता है। Hallelujah. Lord, give me power, give me power, give me power. That power will not work. आप कहोगे प्रभु मुझे सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ काम नहीं करेगा। You should know, above all, you should have the shield of faith to be a good disciple of Christ. आपको ये बात जानना जरूरी है कि ये सबसे ज्यादा आपको आपके सबके साथ विश्वास का ढाल पहले आपके हाथ में होना जरूरी है। You want to see the God power manifesting out of you. क्या आप चाहते कि प्रभु का सामर्थ आपके द्वारा वो दिखाई दे? You need to have a private intimacy with the Lord. तो अकेले में प्रभु के साथ में एक प्यार का समय बिताना जरूरी है। Yes, intimacy with God. प्रभु Connection. के साथ में एक रिश्ता में जुड़ना जरूरी है। Can I hear a big amen for this? क्या इसके लिए Hallelujah. If you want to become a good disciple of Christ, spiritual warrior, अगर आप यीशु के एक अच्छे चेले बनना चाहते हैं, अच्छा योद्धा बनना you चाहते need to हैं, be clothed with the spiritual armor. तो आपके पास वो आत्मिक झिलम या ढाल होना जरूरी A है। spiritual warrior knows how to wear the spiritual armor. तो एक आत्मिक व्यक्ति जो है वो जानता है इस आत्मिक हथियार को कैसे बांधना है। 4 things I'll give you. 4 चीजें आपको दूंगा। Hallelujah. If you want to be clothed with the spiritual armor. अगर आप चाहते हो कि आप ये हथियार, आत्मिक हथियार को बांध ले, Number 1, stand in the righteousness of God. प्रभु के धार्मिकता में खड़े रहो। Number 2, fight with faith. दूसरी बात है विश्वास के साथ, विश्वास से ही लड़ो। Speak the word as a sword. वचन को तलवार के रूप में बोलो। Hallelujah. It's very difficult because grace is so much. मुश्किल है क्योंकि अनुग्रह इतना ज्यादा Hey, है। boss, you are a warrior. You are not a favor man. अरे तुम तो एक योद्धा You are a हो। flavored man. That's why you are not a warrior. You don't have favor to war. आप फ्लेवर्ड आदमी हो। Hallelujah. If you are under a flavor, you cannot receive a favor. अगर आप फ्लेवर में हो तो आप फेवर नहीं पा सकते हैं। पास्टर, वो सेंट अच्छा था, वो परफ्यूम अच्छा था. That's all. Pastor, that perfume was nice. उतना ही। But still you are not favored to receive that perfume. लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह नहीं आपके ऊपर वो परफ्यूम को पाने के लिए। Hallelujah. You need to stand in righteousness. आपको धार्मिकता के साथ You खड़े need to होना है। fight with faith. विश्वास की लड़ाई को You need लड़ना to है। speak word as a sword. तो आपको वचन एक तलवार के The रूप other में बोलना है। other day I was praying, fasting and praying and walking and praying in the tongues and praying in the spirit. Rakata raba lamal barada raba raba. I saw the big hammer in front of my eyes. तो कुछ दिन पहले मैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और ऐसे ही जो है मैं अन्य भाषा में बात करके यहाँ से वहाँ कमरे में चल रहा था तो मैंने एक बड़ा हथौड़ा को देखा मेरे आंखों के सामने। And on that athoda, the head was written, Word of God. और उस हथेड़े के सर पर लिखा हुआ था प्रभु का वचन। And in the spirit realm I'm praying and holding that athoda and breaking the head of the devil. और आत्मिक रूप से मैं वो हथौड़ा लेकर वो शैतान के सर पर मैं उसे फोड़ रहा Then था। my prayer changed into non-language. और फिर मेरी भाषा, मेरी मनुष्य की भाषा में अपनी In भाषा the में प्रार्थना मनुष्य की में बदल भाषा में गया। ऐसे, Lord, I take the hammer of the word of God and I beat the devil. I crush the works of the enemy in the name of Jesus. और Wow. फिर मेरे खुद के शब्दों में उसके बाद मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरे वचन को लेता हूँ, अभी मैं शैतान को पूरी तरह से उसको इस हथौड़े से मार डालता You need to हूँ। speak the word as a sword, not as favor. प्रभु के वचन को कृपा पाने के लिए नहीं लेकिन एक तलवार के रूप Because में आपको you बोलना है। are clothed with the spiritual armor of God. क्योंकि प्रभु का आत्मिक हथियार को आपने पहना हुआ है। And number 4, you need to discipline in the spiritual warfare. You cannot involve yourself into any other things which is not pleasing to God. तो आपको ये आत्मिक युद्ध में अपने आप को ये जो अनुशासित करना जरूरी है। आपको दूसरे चीजों में शामिल नहीं होना है। Hallelujah. When you have the spiritual armor, जब आपके पास ये आत्मिक हथियार है, you are a fearless warrior in the name of Jesus. आप एक ऐसा योद्धा हो जिसमें कोई भय नहीं। Hallelujah. That's what the Bible says, Proverbs 27:17. The iron sharpens iron. इसलिए नीति वचन 27 कहता है,
Iron sharpens iron. लोहे लोहे को लोहे लोहे को चमका देता है। चमका देता है. That means these patterns had unity among themselves. यानी उसका ऐसा पैटर्न था कि ये दोनों के बीच में Patterns. अच्छा स्पार्टन, अच्छा स्पार्टन जो योद्धा थे उनके बीच में एकता थी। They had unity. You as a spiritual warrior, you need to be united with this fellow spiritual warrior. तो आप एक आत्मिक योद्धा होने के रूप में आपको दूसरे आत्मिक योद्धा के Pastor. साथ में एक मन का होना है। So how do a believer can have this spiritual unity? तो एक विश्वासी के अंदर ये आत्मिक एकता कैसे आएगी? Number one, accountability. अकाउंटेबिलिटी यानी जीवन का You, लेखा देने you से। work in an office. जब आप ऑफिस में काम करते हो, You are accountable to somebody above you. आपके ऊपर जिसके नीचे आप काम करते हो, आप उसको अपना जीवन का लेखा देते हो। Hallelujah. Number two, spiritual covering. फिर आत्मिक ढका हुआ रहना जरूरी है। This is the office I'm talking, office of the Lord. और या आप में ये जो है प्रभु का एक ऑफिस है, कार्यालय है, उसके बारे में आपको समझा You रहा are हूँ। also under some covering in the office. ऑफिस में भी आप किसी के द्वारा ढके हुए हो। And number three, you need to have a corporate prayer and worship. That builds the unity. तो फिर आपको ये जो एक साथ समाज में आप जो एक सब लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, उसमें आपको जुड़ना जरूरी है। Iron sharpens iron. कि लोहा लोहे को ही तो है If I'm being, चमका देता है। if me being spiritual be with a gossiper, अगर मैं iron doesn't sharpen iron, poke iron. अगर मैं एक आत्मिक योद्धा हूँ तो फिर मैं जो चुगली करता हूँ या जो उसके साथ में अगर मिलूंगा तो वो लोहा लोहे को नहीं If चमकाएगा। you be with a man who walks in the faith, your faith will lit in fire. आप ऐसे व्यक्ति के साथ चलोगे जो विश्वास में बहुत ही स्ट्रांग You है, be तो with- आपका विश्वास भी जाग जाएगा। You be with a person who talks about God, you will also talk God. एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो प्रभु के बारे में बात करते, तो आप भी वैसे ही बात You करोगे। be a person always, you be with a person who always worship, pray. You will also start worshiping आप and ऐसे praying. व्यक्ति के साथ रहो जो हमेशा आराधना प्रार्थना, आप भी आराधना प्रार्थना में जुड़ोगे। You become strong individually by having fellowship with the fellow believers, having accountability, having spiritual covering and corporate worship and prayers. So you need to have an accountability. आपके जीवन में आपको जवाबदाही You होना need to जरूरी। have a spiritual covering. आत्मिक कोई ढकना जरूरी है। You आत्मिक need रूप to से have a आपको। corporate worship and prayer in your life. आपके जीवन में दूसरे अन्य विश्वासियों के साथ में जुड़कर So what प्रार्थना जीवन होना जरूरी है। happens when we have these things? जब ऐसी सब चीजें हमारे अंदर होती है, You become a spiritual army. No one can able to defeat your God's presence in your life. तो आप एक आत्मिक आर्मी बन जाते हो, योद्धा बन जाते हो, जो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। Hallelujah. And these patterns, when they are trained, they were sent to the war. तो इस पैटर्न्स को ट्रेनिंग मिलने के बाद उन्हें युद्ध में भेज दिया And जाता I है। want to encourage you this morning. आज तुम्हें एनकरेज करना We चाहूंगा। have a kingdom mission because we have trained. देखो हमारा एक मिशन है, वो है राज्य का मिशन। Matthew 28:19, the Bible says, मत्ती का 28-19 ऐसा कहता है। Go therefore, say with me, go therefore, इसीलिए जाओ, and make what? Disciples of all इसीलिए तुम nations. जाकर क्या करो, सब जाति के लोगों को चेला You बनाओ। know, you are a spiritual warfare raised in the house of God to do what? तो make आप एक disciples. आत्मिक योद्धा के रूप में प्रभु के भवन में उठाए गए हो, क्या करने के लिए? चेलों को बनाने के लिए। You are raised to witness boldly. We are not called to be hypocrites. ढोंगी बनने के लिए हमें नहीं We बुलाया। are called to walk in boldness and witnessing about the kingdom of God which is coming to take over this world. हमें धैर्यवान रूप से खड़ा रह के प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए हम बुलाए गए हैं, उसके आने के बारे में बताना है। Go therefore make a disciples. You are a warrior now. You are ready to make a disciples. जाओ, आप अभी योद्धा हो, अभी जाकर लोगों को चेला बनाओ। आप Can I hear तैयार हो amen? चेला बनाने के Hallelujah. लिए। Means I am sent with a mission for the kingdom of God. यानी एक मिशन के साथ में मैं प्रभु के राज्य के काम के लिए भेजा Say गया with me, हूँ। I am in a kingdom mission. कहो कि मैं राज्य के मिशन में I am हूँ, not in a devil's mission. मैं शैतान के मिशन में I नहीं am हूँ। not sit with the scornful and the backbiters. I am called to speak the word of God. मैं टट्टा करने वाले और पीठ पीछे बातें करने के लिए Confess it. उनके साथ उठ बैठने के लिए बुलाया नहीं गया, How प्रभु का वचन long बोलने you के will लिए बुलाया sit गया in हूँ। the chair and become a believer? Now you're
trained to spiritual warfare. Now you have to move on to make disciples and fill the house of God with the people of God. And again, it will again make the disciples. Time has come. वो समय The आ चुका hour है। is now. वो समय अब है। You have to make other one disciple. अब दूसरों को चेला बनाना है। Hallelujah. हालेलुया। So चेला मतलब ऐसा चेला मतलब मैं जो बोलता हूँ मेरा बात सुनो और मैं बोलता हूँ उसको जाके बोलो. No, you have to make them a bold witness talking about Christ, what He did in your life. आपको उन्हें एक ऐसा गवाही बनने का है कि उन्हें वो बताए कि कैसे यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या किया। You need to have ऐसा that, चेला you बनाना है। need to be filled with a compassionate servant. और आपके अंदर एक तरस की आत्मा होना जरूरी है। दयालु You need to be a carrier of Christ authority in your life. यीशु मसीह के अधिकार को लेकर अपने जीवन में चलना है। Not for survival. हाँ ताकि मैं कुछ दिन जिंदा रह सकूं ऐसा I नहीं। am a disciple. I am anointed मैं for my एक survival. No. मैं एक चेला हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, केवल मेरा जीने के लिए काफी है उतना। If you are बस anointed, you need to witness every day. If you are anointed, if God has called you, God has chosen you, how many souls you have brought to the Lord? Just तो check it. अगर आप लोग अगर आप अभिषिक्त हैं तो आपने रोज गवाही देना है, गवाही बनना है। और अगर आप अभिषिक्त हो तो आपने अभी तक कितने आत्माओं को जीत कर लाए हैं परमेश्वर के Means राज्य के you लिए। transform everything. यानी आप चीजों को बदलने वाले व्यक्ति Are you बनोगे। there with me still? You transform everything. अब चीजों को बदलते हैं। Hallelujah. This morning I was telling Psalms 84. आज सुबह को भजन संहिता 84 में बोल रहा था। The psalmist desires to be in the house of the Lord. और वो भजन कर कहता है कि मैं प्रभु के भवन में रहना पसंद करता And हूँ। this morning prophetically I want to tell you, आज मैं नबूवत रूप में आपसे बताना चाहता हूँ। we are not raising any weak people. हम कोई कमजोर लोगों को नहीं उठा रहे हैं। This is the time God wants to make believers well trained, disciplined, discerning, and they will walk in the ways of the Lord. और ये समय जब प्रभु विश्वासियों को बहुत ही अनुशासित करना चाहता है और अच्छी तरह से उन्हें ट्रेन करना चाहते हैं ताकि वो परमेश्वर के लिए वो खरा जीवन जी कर चले। God is not raising the weak believers. कमजोर विश्वासियों के पीछे प्रभु नहीं Weak है। believers, they are like fallen on the roadside. The birds of the air, they'll come, they'll pick up, and they go. कमजोर विश्वासी वो है जिनको जो बीज सड़क के किनारे पहुंचा गया गिर गया था, जहाँ पे आकाश की पंछी आते उसे उठा कर ले The जाते weak हैं। believers are though they've fallen in the midst of this world, they are choked and they और cannot grow. कमजोर विश्वासी वो है जो संसार में गिर जाते और वहाँ की चिंताएं उन्हें घेर लेती और एक दबा देती But है। prophetically, I tell you, God is making you a spiritual disciple warrior. तो आत्मिक रूप से आपको बताना चाहता कि परमेश्वर आपको एक आत्मिक चेला जो योद्धा है, ऐसा योद्धा बनाना You चाहता are है। going to be grounded in truth, आप सत्य में जड़ लोगे and you are going to be led by the Spirit, और पवित्र आत्मा आपको चलाएगा and you will have fearless in faith. और आपका विश्वास में कोई भी डर नहीं होगा। Hear an amen. आमेन। Hallelujah. God is good प्रभु भला all the है time. So above everything, सबके साथ 1 Timothy 6:12, please. पहला तिमोथी का 6:12। Are you a warrior? Are you a soldier? 1 or 2 soldiers are here. Amen. एक दो योद्धा है यहाँ पे आमेन कह रहे हैं। Hallelujah. Unless you don't understand this, जब sir, तक इन बातों your को life will be like this only, stagnant. अगर आप इस बातों को You समझोगे have तो to be जीवन a river where the Spirit of the Lord flows out of you. तो आपको एक ऐसा नदी बनना है जहाँ से पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहे। Bible says, fight the good fight of faith. बाइबल कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, That means अच्छी कुश्ती लड़ मन, no compromise. यानी अच्छी कुश्ती लड़ने वो कोई भी समझौता नहीं वहाँ पर। No compromise with the truth. सत्य के साथ में समझौता नहीं। No compromise with your righteousness. आपकी धार्मिकता में जो चल रहे उसमें No कोई समझौता compromise नहीं। the holiness that you have received from God. जो प्रभु से पवित्रता को आपने पाया उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं No cowardliness. और कोई डरपोकपन नहीं। Hallelujah. Are you there with me? That is how you will become a good warrior in faith. तो उसी रीति से आप एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ोगे Can I और hear an अच्छी amen? योद्धा बनोगे। Hallelujah.
You know, I want to tell you the core values of your discipleship. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके शिष्यता में उसके लिए कौन सी वो मूल्य बुनियादी चीज है। Number one, loyalty. पहला है वफादार। If God leads me one day, I'll talk on loyalty for 2 weeks. और एक दिन अगर प्रभु अगवा करे तो मैं जरूर ये वफादारी के बारे How में 2 you सप्ताह can सिखाऊंगा। be loyal to God. आप कैसे प्रभु के प्रति वफादार रह सकते हैं। Number 2, courage. दूसरा है धाड़सी You रहना। need to have courage. आपके अंदर धाड़स होना Number जरूरी 3, you need to have sacrifice. है। तीसरी बात है आपके अंदर कुर्बानी का जीवन होना Number है। 4, very important, you give birth to the child. चौथी बात, आप जब बच्चे को जन्मते हो You need to take a responsibility for the next generation. आपकी जिम्मेदारी वो आने वाली अगली पीढ़ी की है। Hallelujah. How are you leading your children? Where are you leading your children? आप अपने Are बच्चों you making them spiritual warrior? क्या आप अपने बच्चों को कैसे चला रहे हो? क्या आपके बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? क्या उन्हें वो आत्मिक योद्धा बना रहे हो आप? Those patterns, they live for the legacy. ये जो पैटर्न्स है वो विरासत के लिए, They legacy never के लिए, live for comfort. वो अपनी आराम के लिए नहीं जिए। In 2 Timothy 1:14, please दूसरा तिमोथी का 1:14 make a note, all the youth. सारे जवान लोग भी नोट बनाए। That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. दूसरा तिमोथी का 1:14 कहता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी याद थाती को की रखवाली कर। रखवाली कर, hallelujah. God, the good deposit God has entrusted in you. यानी जो प्रभु ने तुम्हें जो तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ है वो वस्तु को उसको protect कर, उसको रखवाली कर। hallelujah. Are you doing that? The क्या? good thing which was committed to you. Oh, वो जो अच्छी थाती है जो परमेश्वर ने तुम्हें दी थी, keep by the Holy Spirit who dwells in us. पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है उसे रखवाली कर। Don't lose the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को मत खो। Don't leave the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को नहीं खोना है। Don't hear the noise of the world. Hear the voice of God. संसार की आवाज मत सुनो, प्रभु की आवाज सुनो। Hallelujah. हालेलुया। Are you there with me? Hallelujah. You need to walk in authority, आपको अधिकार के साथ चलना है, not with your personal desires. अपनी खुद की इच्छा के अनुसार If you have नहीं। personal desires, you will lose the authority. अगर आपकी अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हो, आप प्रभु की इच्छा को खो दोगे। You need to have discipline, not the emotions. आपके अंदर अनुशासन होना जरूरी है, आपने भावुक नहीं होना You है। need to have some order over your life, not chaos. आपके जीवन में कुछ ऑर्डर होना जरूरी है, सही रीति से चलना है, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी है। Write down this. A lawless soldier, सैनिक जिसके अंदर वो जो नियम के बाहर रहता है, वो soldier नियम के बाहर रहता है, is worse than a weak soldier. वो एक कमजोर सैनिक से भी बहुत बेकार है। A lawless soldier is worse than a weak man. और एक सैनिक जिसके अंदर वो जो नियम के अनुसार नहीं चलता है, वो कमजोर आदमी से भी बहुत ही बेकार है। So what we must do? तो हमें क्या करना है? Acts chapter 5:29 says, प्रेरितों का 5:29 कहता है, but Peter and the other apostles answered and said, we have to obey God rather than men. तो पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य उचित कर्म है. है। Amen. Hallelujah. We must obey God rather than men. तो मनुष्य की आज्ञा का पालन करने से तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आज If you want to become a real believer to disciple, और अगर आप विश्वासी से एक अच्छा चेला बनना चाहते हो, hallelujah, instead of getting into the comfort zone, get into the obedience zone. अपने आराम के स्थान से निकलकर प्रभु के आज्ञा के पालन के स्थान में चले जाओ। So God wants you to be a disciplined soldier of Christ. तो प्रभु चाहता है कि तुम मसीह के एक ऐसा योद्धा बनो जो अनुशासित है। Start discerning the things, whether it is from the world, whether it is a noise of the devil or it's a voice of God. चीजों को जांचना शुरू करो, परखना शुरू करो कि ये आवाज जो आ रही है ये संसार से आ रहा है या प्रभु आत्मा मुझे कह रहा है। You need to have D cube, आपके अंदर ये D क्यूब होना है। D cube, D3, 3 Ds.
Discipline, होना, discerning, and devoted to God. Discipline, अनुशासन discerning, और परखने की आत्मा and devoted to God. और प्रभु के लिए भक्त। And this is the shield of faith that protects all these और things. यही तुम्हारा विश्वास की ढाल है जो तुम्हारी रक्षा करता है। And you need to pass it down to others. और आपको यही चीज दूसरों को भी पास ऑन करना All है। these days, people are passing all filth. इतने दिन अभी लोग गंदगी को ही पास कर रहे हैं। हालेलुया। मैं ऐसा सुना था, ऐसा हो गया। मैं ऐसा इधर से सुना, इसने वो बात कर रहा था, उसने वो बात कर रहा था। बट कभी ऐसा सोचा है, मैं हेवन में गया था प्रार्थना में, एंजल्स गॉड के साथ ये बात कर रहा था, पीटर गॉड के साथ ये बोल रहा था, एलाइजा ये बात कर रहा था, अनोक बोल रहा था मैं कभी नीचे जाऊं। कभी आपने बात की है? What kind of life that believers are living? देखो विश्वासी लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। You have to become serious. हमें गंभीर बनना है। In the last days, the Bible says, बाइबल कहता है अंतिम दिनों में many who are first will become last. बहुत लोग जो प्रथम है वो अंतिम बनेंगे। It's a warning from Jesus. और ये यीशु से चेतावनी So है। don't go last, तो प्रथम का अंतिम मत बनो, because you are in the first, run the race till the last. क्योंकि आप प्रथम हो तो इस दौड़ को दौड़ो तक कि आप When प्रथम you ही are running रहे। the race, आप दौड़ में दौड़ रहे हैं, tiredness आएगा. थकावट आएगी, People will be shouting, लोग चिल्लाते रहे, चीखते "Arey, you will रहे, give up." अरे तू हार मान जा। But the runner has a focus to win the medal. लेकिन दौड़ने वाला व्यक्ति का एक ही फोकस है कि मुझे मेडल He's जीतना है। seeing that cross. He's seeing that lane to cross. और वो देख रहा है कि वहां पर एक सीमा है, मुझे वो सीमा पार करनी You है। need to run the race till the last. आपको अंत तक अपनी दौड़ को दौड़ना है। That's what you need to hear the voice of God. इसलिए आपको प्रभु की आवाज सुननी है। Are you there with me? Are you there? Are you there? Praying with all prayers सब प्रार्थनाओं in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करते And रहना you है need आपको। to protect your faith. आपके विश्वास को आपको की रक्षा करनी If that faith is in you, है। अगर आपके अंदर वो विश्वास है only when you hear the word, the faith receives the life. और वचन सुनने के बाद ही वो विश्वास जीवित हो जाता है। Amen. The Spirit of the Lord in the morning 3 a.m. to 3:45, I had a beautiful vision. आज सुबह 3 से 3:45 बजे तक मैं पवित्र आत्मा ने जगाया और मैंने एक सुंदर A दर्शन very देखा। powerful vision. बहुत ही सामर्थी दर्शन था वो। You know, I saw a room, मैंने एक गर्भ को देखा, a room, अच्छा मैंने एक कमरा देखा and in that room I saw many chosen people were sitting. Many. और उस कमरे में मैंने देखा बहुत चुने हुए लोग बैठे थे I can see them. Oh, these are my people. These are there. These are there. और मैं उन्हें देख पा रहा था कि ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं। And suddenly I saw the fire came, holy fire, अचानक मैंने एक पवित्र अग्नि को उतरते हुए देखा and it gripped them from the head to the sole of their feet. और वो अग्नि ने उन्हें ऐसे जकड़ लिया उनके सर से लेके पांव तले तक And they are enjoying that fire. और उस अग्नि का वो आनंद उठा रहे हैं। And these people I'm seeing, they don't want to get out of that fire. और मैं देख रहा हूँ कि ये लोग भी ऐसे कि वो आग से, वो अग्नि से बाहर ही नहीं It निकलना is चाह रहे। like if I go out, I get chilled. So that's what I want to be in the fire. और वो सोचते ऐसे जैसे कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे ठंडी लग रही है, मैं आग में बैठा And रहूंगा। I'm watching for 45 minutes the same thing. What all the things are happening in that fire. और मैं वो 45 मिनट के लिए वही देख रहा कि आग के अंदर क्या हो रहा है इनके साथ में। And that fire is smiling. The joy is coming in that fire. और वो अग्नि में जो है वो मुस्कुरा रहा है और सबको आनंद से I वो भर रहा never है। saw fire laughing. मैंने अग्नि को हंसते हुए कभी नहीं देखा। I never saw fire. It is so fiery and it is filling everyone with joy. और मैंने वो अग्नि को इतना अग्नि से भरे हुए सबको आनंद से भरते हुए कभी नहीं देखा। And I was noticing somebody will run out of this fire. मैं देख रहा था, नजर डाल रहा था कि कोई तो ये आग को छोड़ के भाग They जाएगा are बाहर। not leaving that room, neither they are leaving that fire. वो कमरे को छोड़ ही नहीं रहे, वो आग को छोड़ ही नहीं And I'm रहे। thinking, Lord, what kind of fire is this? मैं सोच रहा कि प्रभु ये कैसी अग्नि And है। I enter into that fire. फिर मैं भी उस अग्नि में प्रवेश किया And I was thrilled. और मैं आश्चर्यचकित। It was like, oh, Heaven is in my heart. that
was the feeling I was getting in that fire. और उस आग के अंदर मुझे वो फीलिंग आ रहा था कि स्वर्ग मेरे दिल में है। And I was moving around them and nobody is seeing me. और मैं उनके चारों ओर में मंडरा रहा था, कोई भी मुझे देख ही नहीं रहा I था। am going nearer to that person, he is not seeing me. I said, what happened? मैं उस व्यक्ति के बाजू में जा रहा था, फिर भी वो मेरे पर नजर नहीं रख रहा It's था। me, I'm talking to, it's me. अरे मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। They are not recognizing me. वो मुझे पहचान ही नहीं रहे। Then I said, Lord, what is this? मैंने कहा प्रभु ये क्या है अभी? And suddenly I was filled with that fire. अचानक वो आग से मैं भर गया। And I heard the voice saying, I heard the word saying, मुझे एक वाणी आई। Jesus said, यीशु ने कहा, who is my people? कौन है मेरे लोग? One who walks in the will of God, or one who does the will of the Father. वो जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है और जो पिता की इच्छा को पूरी करता है। And they are here, the Lord said. प्रभु कहते हैं ये लोग यहाँ पर हैं। And I was filled with the fire after some time. और कुछ समय के बाद मैं भी उस अग्नि से भर गया। And they are not recognizing me, I am not recognizing them. वो लोग मुझे नहीं पहचाने और मैं भी अभी उन्हें नहीं पहचान पा रहा But हूँ। what are we doing? हम कर क्या रहे हैं? We were only looking at the throne with the fire, the consuming fire was sitting there. हम केवल उस सिंहासन को देख रहे थे। उस सिंहासन से वो बड़ी आग जो भस्म करती है, वो बड़ी ज्वालामुखी का आग Like निकल how रहा था। Moses saw the fire in the burning bush. जैसे मूसा ने वो जलती हुई And झाड़ी the में उस same आग को fire देखा। was on the throne. सिंहासन पे वही अग्नि And थी through that throne the fire was coming. और उस सिंहासन से वो अग्नि आ रहा था And I was so joyful. और मैं पूरे खुशी से भर गया। And the Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, this is the last days we are living in. हम अभी अंतिम के बहुत ही अंतिम घड़ी पे पहुंच The गए हैं। children that are born, it's the last generation. अभी के जो बच्चे जन्मे हैं वो अंतिम पीढ़ी है। Hallelujah. After that there is no generations. उसके बाद और कोई पीढ़ी नहीं Because we रही, are living into the last generation. क्योंकि हम बहुत ही अंतिम समय में पीढ़ी में आ चुके And हैं। God told me, प्रभु ने मुझसे बात said, किया, this is the time ये समय you है need to lead the people to the Holy Spirit works. आपको लोगों को पवित्र आत्मा के कार्य में ले जाना है। And each one was assigned with the fire. हर एक को अग्नि ने कुछ काम सौंपे। And you know what? One more thing I was noticing. एक और चीज मैंने गौर किया। You want to leave the fire and go, this fire is not leaving. Amen. और ये अग्नि से बाहर निकलने की कोशिश कर, लेकिन अग्नि उन्हें लपेट रहा है। You know, that kind of Amen, presence amen. of God gripped those Hallelujah. people and me. और वो ऐसी उपस्थिति ने, प्रभु की उपस्थिति ने उन लोगों को घेर लिया था और मुझे भी घेर लिया था। वो And when I got up, I बस thought 6 o'clock alarm बज गया. और मैं सोच रहा था कि 6 बज गया और मेरा अलार्म बज And गया था। when I saw my watch, it was 3:45 a.m. in the morning. तो जब मेरे घड़ियाल को देखा तो 3:45 बजे हुए थे सुबह The के। picture was going on my mind. Still now it is going on my mind. और वो चित्र बार बार मेरे मन में आ रहा था, बार बार अभी भी हो रहा I है। can see that fire is so मैं much of उस glazing. आग को देख रहा था और आग इतना तेजों में आग था वो। And I encourage you, church, we are moving into the new season where the Holy Spirit want to take control of your life if you allow Him to do it. और कलीसिया में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, एक नए मौसम में अभी कलीसिया प्रवेश कर रहा है जहाँ पे पवित्र And- आत्मा and आपके listen पूरे this. जीवन को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अगर आप उसे अनुमति दोगे And the तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में And the कार्य करेगा। Spirit of the Lord told me very clearly, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे क्लियरली बताया, many will be removed. बहुत लोग निकाल दिए जाएंगे, Many will be removed. बहुत उसमें से निकाल दिए जाएंगे। The mixtures will be removed. जो मिश्रण में हो निकाल दिए The जाएंगे, mixtures in the world will be removed. जो संसार के साथ मिश्रण में वो निकाल And दिए this is the जाएंगे। high time you need to get back to His presence. ये बहुत काफी समय हो चुका है, अभी तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में You आना may है। like it or whether you may don't like it when I say this. जब मैं ये बात कह रहा हूँ, अभी तुम्हें पसंद आए शायद नहीं पसंद But आए, this is the word from the Lord I received. लेकिन ये वचन, ये शब्द मैंने प्रभु से पाया है। Very few कह will रहा हूँ, find Him. बहुत ही कम लोग उसे पाएंगे। Older, बहुत बुलाए हुए Called तो, her. बुलाए हुए तो many, बहुत है, but chosen are only few. पर चुने हुए केवल थोड़े ही And the हैं। Lord showed me in this fire. और इस आग में प्रभु ने मैं एक और चीज दिखाई। Many think that I am in the Lord. बहुत लोगों को लगता है मैं तो प्रभु में हूँ, Oh, I am praying in the house. मेरे घर में मैं खुद अकेला I प्रार्थना live करता a हूँ, godly life. मैं बहुत पवित्र जीवन जीता हूँ। And the Lord told, I don't know them. और प्रभु कहता है मैं ऐसे लोगों को जानता नहीं। I asked Lord, how? They are, मैंने कहा प्रभु कैसे, ये लोग तो प्रार्थना में है, Lord, they are living life वो according to अच्छा your word. पवित्र आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। He said, Son,
बेटा even I gave you a parable. बेटा मैंने तुझे एक दृष्टांत भी Many दिखाया। will come in the name of Jesus. I cast out the demon. I healed the sick. Do you think they did not know the word? They knew the word. और फिर बहुत लोग आए और कहते कि मैंने तेरे नाम पे दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने प्रचार किया, मैंने बीमारों को चंगा किया। क्या वो वचन नहीं जानते थे? वो वचन के अनुसार चल रहे थे, Oh, they were doing good works. वो अच्छा काम कर रहे थे। Yes, Lord. मैंने प्रभु से फिर सवाल They पूछा, are reading the Bible. They are praying. प्रभु लेकिन वो बाइबल तो पढ़ रहे, प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने। God said this word very powerful. ये प्रभु ने मुझे कहा है, बहुत सामर्थ्य शब्द है, They are not connected to my body. लेकिन मेरे शरीर के साथ में वो जुड़े हुए नहीं हैं। They are not connected to my body. वो मेरे शरीर के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं। Jesus is the head of the body, शरीर के सिर यीशु मसीह हैं and we are His body according to the Scripture. और हम उसके शरीर हैं। इस If वचन we के अनुसार। don't come together in the last days, अंतिम दिनों में अगर हम एक नहीं होते हैं the same word will repeat to many people. I don't know who you are. और वही वचन सबको उनके लिए रिपीट होगा कि मैं नहीं जानता तू कौन है। I'm serious. मैं गंभीर हूँ इस मामले years में। back I was not serious. So much serious in prayer. I was not serious. कुछ साल I'm openly पहले confessing. कुछ साल पहले मैं इतना गंभीर नहीं था प्रार्थना के विषय में। मैं अभी खुले उस बात को कन्फेस करता हूँ, Because I came to an attitude. I know the Bible from Genesis to क्योंकि Revelation. मैं इस रवैया से आ गया था कि हाँ मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य बाइबल जानता हूँ। किधर भी खड़ा करो मैं प्रचार कर सकता हूँ. कहाँ पे भी खड़ा करो, यू मेक मी स्टैंड एनीवेयर आई But कैन। very soon I understood. Few years back, कुछ साल पहले मैं ये बात समझ गया, he said, "Son, बेटा I'm warning you. मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, Come back to my presence." मेरी उपस्थिति में फिर से जुड़ जाओ। And somewhere in the corner of my heart, I used to pray to God. और कहीं तो मेरे दिल के कोने में मैं दुआ किया करता था, And Lord, help me. प्रभु मेरी मदद कर, Lord, help me. प्रभु मेरी सहायता कर। And after several years of prayer, और बहुत साल की प्रार्थनाओं के बाद suddenly the new season has taken place. अचानक एक नया मौसम शुरू हो चुका Amen. है। It took few years. बहुत थोड़ा साल लगा, Hallelujah. But God put me back to the track of लेकिन fire. प्रभु ने फिर से मुझे उस वापस लाया ट्रैक So पर। now what is my life? My life is prayer. You won't अभी मेरा believe. जीवन क्या है? From प्रार्थना का ही last 2 जीवन। weeks, I have not taken anyone's phone. और 2 सप्ताह से तो मैंने किसी का फोन भी I नहीं उठाया। don't look at the mobile what message is coming. मैं मोबाइल को भी नहीं देख रहा हूँ कि कौन सा संदेश I am मैसेज आ looking रहा at to God. What is the message? है, वो किसका मैसेज। मैं प्रभु को देख रहा कि प्रभु संदेश क्या Lord, है। what is your word for me? प्रभु आप मेरे लिए क्या वचन What देना is the चाहते हैं? plan for this world? ये पूरी दुनिया के लिए आपका प्लान क्या Lord, है? where I have to go and win the souls? प्रभु मैं कहाँ जाऊँ आत्माओं को जीतने के लिए? Only this I'm praying. यही बात मैं प्रार्थना कर That's रहा what continually everyone is anointed and everyone is filled. There are a lot of testimonies today. You want to know the testimony? Join in the evening 7:30. You will come to know what God is doing in their lives. हूँ। और इसीलिए लोग निरंतर लगातार प्रार्थना आत्मा में भरते हुए जा रहे और इसलिए बहुत सारी गवाहियाँ उठ रही है। अगर आपको गवाही जानना है, सुनना है, आज शाम को 7:30 की प्रार्थना में आप लोग जुड़े और उस गवाही के लोग शेयर करने वाले उसे सुन सकते हैं। I felt the Spirit of the Lord telling me that time, मुझे ऐसे लगा उस समय पवित्र आत्मा मुझे कहते हुए, for the people who doesn't go to church, start an online church for them. जो लोगों को बिल्कुल कलीसिया नहीं है जाने के लिए, उनके लिए ऑनलाइन कलीसिया शुरू करो। Hallelujah. So God is leading many things. So we have to pray, church. तो प्रभु बहुत सारी चीजों के लिए अगुवा करे, हमें प्रार्थना I shared it so that you will be encouraged and you will go back to the presence of God. You pray and you get the vision from the Lord. तो मैंने आप लिए इसलिए शेयर किया ताकि आप प्रभु के साथ उपस्थिति में जाए, आप इस विजन को पकड़े और But one प्रभु से thing God प्रार्थना taught me करें। how to protect the shield of faith. लेकिन एक चीज प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये आत्मा विश्वास को जो ढाल है उसे कैसे सुरक्षित रखना And है। if you have the सुरक्षित shield of रखता है। faith, अगर आपके पास ये विश्वास की ढाल है you can fight any the fiery darts that comes against you. तो आपके पास अगर ये विश्वास की ढाल है तो जलते हुए कितने भी तीर आपको सामना करना पड़े वो बुझा दिए जाएंगे। Amen.